Hello everybody, this is Aryan Thakkar and welcome to my YouTube channel Aryan Tutorials. And on a huge request, finally I have taken up the unseen passage, that is your comprehension part, which carries 20 marks of your question paper. Now, see, unseen passage usually is very challenging for those who are not good with reading. So if you haven't had the habit of reading uh, anything, it could be text or newspapers or anything, and if you are not good with vocabulary, you are going to face challenges in this portion. Yet I would give my last minute tips to you all as to how you can dodge the unseen passage. So let's get started. First of all, the tips that I want to give is, whenever you get your question paper, the first thing that you need to do is read the passage carefully. And before doing so, before you start reading your passage, आप आराम से सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर के नीचे जाके जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्या वर्ड का मीनिंग आपको खोजना है, and क्या क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन है, so that you get an idea as to what are the points that you need to look for while reading that passage. That is tip number 1. Then tip number 2 is, take good 10 minutes of your reading time to read the unseen passage. And ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में पढ़ रहे हो, just clear everything off from your mind and then read it diligently, properly, and then you will be able to understand what is the need of the question and then try to look out for the answers. Okay. And tip number 3, whenever you are doing the question answer portion, that the answers to the question has to be given as far as possible in your own words. Try not copy pasting directly from the text, but if you are not good at framing the answers in your own words, you can do so. But then if possible from your end to write it in your own words, then please do it. It will get you a brownie point. Okay. चलिए, so I'll show you how you have to handle your unseen passage. I have taken up my own question paper, the mock which I had conducted here, and इसी पे मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ and आपको हेल्प करता हूँ कि कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप सबसे पहले बिना पैसेज को स्टार्ट किए रीड करना, आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि क्या मांगने का कोशिश किया है. Like, find a single word from the passage that will exactly replace the underlined words or the words in the following sentences. Raj was filled with despair on seeing the drab and dirty. So you have to find something related to dirty. Okay. Second is, thick metal shackles around his ankles are attached to a heavy chain fixed to the far wall. So you have to find something associated with fixed, with tied, कुछ ऐसा. अपने आप को हिंदी में बोलने का कोशिश करिएगा कि आपको क्या खोजना है, नीड क्या है क्वेश्चन का. देन नंबर 3, द माउंटेन्स रेवर्बरेटेड. रेवर्बरेटेड का मतलब होता है कि अगर आप पहाड़ में खड़े रह के कुछ चिल्लाएंगे तो योर वॉइस कम्स बैक टू यू, दैट मीन्स इट एकोज. सो रेवर्बरेटेड कुछ उससे एसोसिएटेड होगा. ठीक है, ये तीनों चीज को माइंड में रखिएगा. एंड देन उसके बाद आप अपना प्रेसी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि प्रेसी आपको पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया जाता है कि कौन से पैराग्राफ से लिखना है इन 100 वर्ड्स. व्हाट दे डू इज दे गिव अ समराइज्ड passage of the entire comprehension. That is not what teachers are asking for. They are asking things in very particular, and you need to be particular with your pressy portion. So आपको जब लीड दे दिया गया है कि आपको पैराग्राफ 2 to 9 से उठाना है, तो फिर आपको पूरा समरी लिखने का जरूरत ही नहीं है उस अनसीन पैसेज का. सो कोशिश करिए कि आप जब अपना प्रेसी बनाएंगे तो फिर आप उसको पैराग्राफ 2 से 9 के बीच में ही उठा के, या जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी में से उठा के बनाने का कोशिश करिए. ठीक है. एंड इसका एडवाइस टिप मैं ये दूंगा कि जब भी आप प्रेसी लिखने के पहले जो आप अपना रफ बनाएंगे, रफ वर्क करेंगे, उसको भी ग्रिड में ही बनाइए. ठीक है, उसको भी बॉक्स करके ग्रिड में बनाइए. एंड देन पेंसिल से लिख के या पेन से लिख के आपको जो भी आपका रफ वर्क करना है उसी में ही कर लो, ताकि आपको खुद इजी हो एज टू with the choice of words जो आपको लेना है and the number of words which you have to take to make that fair draft. Okay, so आइए मैं आपको
थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे हुआ। सबसे पहले लेट्स रीड द पैसेज। अब रीडिंग भी बहुत ध्यान से करना है। बच्चे लोग कैसे रीड करते हैं, आफ्टर एक्सप्लोरिंग द डार्क बंगलो आई सेटल माई सेल्फ डाउन देयर वर रूम्स। नहीं, इस स्पीड से रीड मत करिए। टेक योर टाइम, 10 मिनट्स है आपके पास रीडिंग टाइम का, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए रीड करने के लिए। यू नीड टू रीड दिस लाइक that after exploring the dark bungalow, go slow so that each and every word settles down in your mind. You know, you get the grab of what is that passage trying to convey to you. ठीक है? So after exploring the dark bungalow, I settled myself down. There were 3 rooms besides my own, each connected to the other through dingy white doors fastened with long iron bars. So पहला वर्ड जैसे क्या था वहां पे, Raj was filled with despair on seeing the drab and dirty. So drab and dirty means, drab means something which is very dull and dirty means something which is not very clean. So I think when you read it, आप देखिए आपको सेकेंड लाइन में आपका लीड मिल जाएगा। There were 3 rooms besides my own and each connected to other through dingy. Now this word dingy connects with dirty or something which is dull or something which is sullen. So this is going to be your first word, number 1. आपको मिल गया आपका first word, ठीक है? So when you read the passage slowly, you automatically will be able to do it. Second word है thick metal shackles around his ankles are attached to heavy chain fixed. You need to find out a word which is associated with fixed. That means something that is tied to something, right? So इसका आंसर यहां पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं वापस से, थ्रू डिंजी वाइट डोर्स फास्टेंड। फास्टेंड का मतलब होता है अटैच्ड, which conveys fixed. So here you get your second word itself, fastened. आप अगर एरोप्लेन में बैठे होंगे तो आपने सुना होगा एयर होस्टेस जो होती है या कैबिन क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो लोग बोलते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पैसेंजर्स टू फास्टन देयर सीट बेल्ट. फास्टन मींस अटैच और फिक्स देयर सीट बेल्ट एंड अनफास्टन मींस टू लूज इट. ठीक है? एंड द थर्ड वर्ड that you need to look for is reverberated, right? So reverberated से something related with echoing कुछ होना चाहिए. Reverberated. There were no lamps, only candles. Okay, sorry. Every bang of a trunk echoed. See, there you go. मैंने कहा ना reverberated is associated with echoed. So आपको आपका थर्ड वर्ड भी मिल गया. तो आप जब अपना माथा को शांत करके रीड करेंगे आपको जरूर आपका आंसर मिलेगा. जस्ट डोंट बी इन अ हरी टू रीड द एंटायर पैसेज इन वन गो एंड आप इतने स्पीड में पढ़े कि आपको खुद में ही कुछ समझ में नहीं आया कि आपको क्या खोजना है. Go slow, you will have ample time to solve your paper. Make the most use of it. Okay? Now coming to your Prezi portion. Obviously, एक वीडियो में तो हम पूरा पढ़ के नहीं कर सकते हैं. I presume that आप क्वेश्चन आंसर्स तो खुद से कर ही लोगे, उसमें आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है. Prezi में मैं आपको हेल्प कर देता हूं. This is your Prezi. And what is the question? You need to summarize in about 100 words how the narrator made and unmade the ghost story. आप इस तरीके से अपना रफ वर्क आंसर स्क्रिप्ट में लिख दीजिएगा कि क्या कंपोनेंट चाहिए प्रेसी को. हाउ ही मेड एंड अनमेड द घोस्ट स्टोरी एज मेंशन्ड इन द पैसेज. ऊपर से आपको लीड्स भी दे दिया गया है बिटवीन पैराग्राफ 2 टू पैराग्राफ 9. सो आपका जो भी प्रेसी का कंपोनेंट बनेगा वो यहां से शुरू नहीं होगा, रादर बिटवीन पैराग्राफ 2 टू पैराग्राफ 9. मतलब कि आपका जो भी आंसर बनना है वो यहां से इसके बीच में बनेगा. ठीक है? सो आप एक रफ ग्रिड बना लीजिएगा पहले से ही. ठीक है? यू ट्राई मेकिंग योर रफ ग्रिड लाइक दिस, जो भी आप अपना 5 लाइंस का बनाते हैं, एंड इसी में ही अपना रफ प्रेसी ड्राफ्ट करने का कोशिश करिए. उसमें आपको जो भी काटना है जो भी करना है उसी में कर लीजिए. एंड देन यू मूव टू अ फेयर ग्रिड on the next page and then try
मेकिंग लेस ऑफ एरर्स वाइल डूइंग सो। अपना वर्ड काउंटिंग इसी में कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 कितना आपको लेना है, एंड 100 वर्ड्स को अटैच करने का कोशिश करिएगा। नाउ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भैया या सर कि अगर हमने 100 वर्ड से ज्यादा एक्सीड कर दिया तो पीनलाइजेशन होगा? जी हाँ, आपका पीनलाइजेशन होगा, बिकॉज the evaluation process of class 12 is much more tougher than that of class 10 for ICSE. ठीक है, so try sticking to the word limit, that is 100 word. 99 is also not acceptable and 100 is also not 101 or 2 is also not acceptable, but at times teacher are a bit moderate, but फिर भी why to take that benefit of doubt? It's just you try to give your best within that 100 word, उसके बाद whatever happen it will happen। ठीक है, तो मैं आपको एक सैंपल प्रेसी दिखा देता हूं कि मेरी स्टूडेंट ने कैसे प्रेसी लिखा है। हाउ डू आई टीच देम टू सॉल्व, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सी देयर यू गो। सो ये था उसका प्रेसी। उसने ये रफ ड्राफ्ट आप देख पा रहे हैं कि ग्रिड में ही बनाया है, एंड उसको जो भी काटना था, जो भी लिखना था, उसने सब इस रफ वर्क में किया है। उसने अपना सारा वर्ड काउंटिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं 33 67 62 58 76 क्या क्या वर्ड्स है, जो भी लेना है, शी मेड एवरीथिंग इन द रफ एंड देन शी वेंट टू अ फ्रेश पेज एंड ड्राफ्टेड अ complete 100 word का प्रेसी in which she has got 8/8। मेक श्योर करिएगा कि प्रेसी जब आप बनाएंगे, टीचर्स इन द मार्किंग स्कीम विल गेट 6 to 7 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे उनको करेक्शन करना होगा, एंड यू हैव टू टच अपॉन 4 पॉइंट्स जिसमें आपको कंटेंट का मिलेगा 4 मार्क्स। द मार्किंग स्कीम गोज लाइक इट विल बी C+E in which there will be 4 marks for the content and 4 for the expression. So अगर आपके चारों पॉइंट्स मिल जाते हैं मार्किंग स्कीम से, so you will get 4/4, and depending upon how your linguistic is, क्या आपने पंचुएशंस ठीक से लगाए हैं कि नहीं। अब बहुत कोई मेरे से पूछता है कि क्या हमें पंचुएशंस भी यूज करना है? जी हाँ, आपको इस्तेमाल करना है। क्या उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स यूज होगा पंचुएशन के लिए? नहीं, उसके लिए कोई सेपरेट बॉक्स यूज नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां उसने कॉमा का यूज किया है, यहां उसने कॉमा का यूज किया है, उसने यहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया है, एंड देन शी हैज स्टार्टेड विद अ फ्रेश लाइन, राइट। सो पंचुएशंस आपके ग्रिड में ही रहेंगे, उसके लिए कोई सेपरेट बॉक्स नहीं यूज होगा। ठीक है, एंड 4 पॉइंट्स मिलते ही 4 मार्क्स मिल जाएंगे, एंड अगर एक्सप्रेशन में लिंग्विस्टिक सब सही है, प्रॉपरली है, देन यू विल गेट योर 4/4, और डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव written you will get a 2 3, that totally depends on your linguistic and what the evaluator is looking for। ठीक है, so I hope you found this video helpful, and if you are liking my content then please do like, share, subscribe and share these videos with your friend so that multitude of students can benefit from this quality content। Have a good preparation. Goodbye।